Hello everyone and welcome. Once again, I am here, Amit Sharma, PGT English. But this time, I am here for the students of class 11. But the first thing is that please subscribe this channel, share this video as more as you can so that all the students of class 11th out there can complete their literature portion in this lockdown, right? So my dear students of class 11th, you have two books. The first one is Hornbill and the second one is Snapshot. So let's talk about the very first chapter of your Hornbill, which is The Portrait of Lady, written by Khushwant Singh. So let's talk about Khushwant Singh. He is one of the greatest novelists of Indian literature, and his comments and remarks are duly recorded in terms of literature glory, right? And let's talk about now the theme of this chapter. My dear students, having grandmother in our life is blissful. If I ask you, recall your childhood days, whoever you are, my dear subscriber, viewers and students, just recall your childhood days. You will find that your grandmother has made your childhood more remarkable and memorable. The kind of role she has played, the kind of contribution she has given in your life is remarkable. It is really unbelievable. So the place of grandmother is pious, sacred, can never be replaced. And this thing is happening in this chapter. As far as Khushwant Singh is concerned, he is talking about his own grandmother, right? And this chapter is all about author's grandmother. That is why the portrait of lady. And that lady is grandmother of Khushwant Singh. Alright? So let's start the chapter. Chapter begins with Khushwant Singh was sitting in his drawing room and staring at the photo of his grandfather on mantelpiece. You know, my dear students, in that photograph, Khushwant Singh's grandfather was putting on a big turban and his big beard was covering the best part of his chest. And you know what? In photograph, his grandfather did not look that sort of person who would have only wife and many sons. But it seemed that he could have only lots and lots of grandchildren, right? Now, Khushwant Singh is going to talk about his grandmother. He's saying that like everybody's grandmother, I have as well, right? और उसके बाद वो अपने ग्रैंडमदर के बारे में बात करना शुरू करते हैं. जैसे सबकी ग्रैंडमदर होती हैं वैसे खुशवंत सिंह की भी थी, उनकी दादी माँ एकदम बूढ़ी अवस्था में. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बूढ़ी अवस्था में थी और इससे ज़्यादा कोई बूढ़ा हो ही नहीं सकता है. इट सीम्ड दैट शी हैज़ रीच्ड ऑन द एपिक्स लेवल ऑफ ओल्ड एज, जहाँ पे अब इससे बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता था. पिछले 20-25 वर्षों से जब से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को देख रहे थे वो एकदम बूढ़ी अवस्था में थी. शरीर उनका झुक गया था, बाल एकदम सफ़ेद हो गए थे और उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी, वो कंठी माला जो होता है वो रहता था, रुद्राक्ष वाला, वो हमेशा उसको मूवमेंट होता रहता और उनके लिप्स कॉन्टिन्यूसली प्रेयर करते रहते. तो ये दादी माँ का उनके सिनेरियो था. आई मीन शी वॉज लुकिंग लाइक यू नो लैंडस्केप ऑफ विंटर, पीसफुल, काम एंड ब्यूटीफुल. और एक और बात थी, खुशवंत सिंह को विश्वास नहीं होता था जब लोग कहते थे कि इनकी ग्रैंडमदर एक वक्त था शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यंग एंड चार्मिंग, और इनके हस्बैंड भी थे. ये बात खुशवंत सिंह को हजम नहीं होती थी क्योंकि जब से खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ को देख रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी, इसीलिए उनको थोड़ा इस बात पे विश्वास करना कठिन हो जाता था, राइट. और इस कहानी को दो भाग में बांटा गया है. दिस स्टोरी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 phases. The first one, as long as narrator was in village, and the second one, when narrator and grandmother they were shifted into the city with the parents of खुशवंत सिंह, right? तो जब तक खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में सेटल हो रहे थे, स्टेबलाइज हो रहे थे, तब तक ग्रैंडमदर के साथ खुशवंत सिंह गांव में रहते थे. अब गांव की कहानी ये थी कि सुबह ग्रैंडमदर इनको उठाती थी, नहलाती धुलाती थी, इनको तैयार करती थी. इनका स्लेट, उस वक्त स्लेट होता था, इंक पॉट होता था, स्लेट को साफ़ करना, इंक पॉट तैयार करना, पेन रखना, सब कुछ ग्रैंड मदर करती थी.
And one more thing is that while getting him ready for the school, she used to sing prayers. And she wanted that Khushwant Singh would also learn those prayers. But Khushwant Singh never bothered to learn those prayers, but he loved her voice. Prayer was monotonous, but voice was lovely. That is why he used to listen her voice, but he never bothered to learn those prayers, right? तो ये कहानी थी, हमेशा रोज़ की तरह होती थी. ओके, ग्रैंड मदर सब कुछ करती थी, और जब स्कूल के लोग निकलते तो जो बासी चपाती बचती थी ना, उस पर कुछ बटर वगैरह लगा के वो रख लेती थी, क्योंकि जब वो स्कूल से लौटते थे ना, तो गली में जो डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फेंकती थी, उनकी तरफ दे देती थी. खैर, स्कूल जो था वो अटैच था मंदिर से, तो जब तक नैरेटर स्कूल में पढ़ाई करते, वो मंदिर में कुछ स्क्रिप्चर्स या रिलीजियस बुक्स पढ़ती, धार्मिक की पढ़ाई होती थी, ईश्वर के बारे में बात होती थी, स्पिरिचुअलिटी था. तो गांव का ये पूरा सिनेरियो था. द स्कूल वॉज अटैच्ड विद द टेम्पल, एंड एज लॉन्ग एज द ऑथर वॉज स्टडिंग इन द स्कूल, शी यूज्ड टू वेट into the temple while reading those scriptures and religious books, right? And as soon as school got over, they both left together, and in that street she used to throw those stale chapatis to the street dogs, right? और वो खाते हुए कुत्ते एक पीछा करते हुए घर की तरफ चले जाते. तो ये जो सीन था, ये गांव का सीन था. अब जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सेटल हो गए शहर में, तो क्या हुआ, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह को बुला लिया गया. एज सुन एज दे रीच्ड इनटू द सिटी, थिंग्स वर डिफरेंट, या यू कैन से दैट थिंग्स चेंज्ड ड्रास्टिकली. नरेटर गॉट एडमिटेड इनटू द इंग्लिश मीडियम स्कूल, एंड अ मोटर बस यूज्ड टू कम टू पिक हिम अप फॉर दिस स्कूल. तो इससे क्या हुआ, एक बॉन्डिंग जो था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, सेग्रीगेट होने लगा, सेपरेट होने लगा, आइसोलेट होने लगा. नरेटर इंग्लिश मीडियम में उनका एडमिशन हो गया. जब वो स्कूल से आते तो नरेटर की ग्रैंड मदर इनसे पूछा करती थी कि आज क्या पढ़ाया गया, तो वो इंग्लिश की बातें बताते, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ग्रेविटी, लॉ, ये सारी चीज़ें बताते. एंड एट दैट केस ग्रैंड मदर वॉज फीलिंग हेल्पलेस बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़. वो अक्सर पूछती क्या पढ़ाया गया, तो ये इंग्लिश मीडियम की बातें बताते और ये मदद नहीं कर पाती, तो इनको थोड़ा सा बुरा लगता. यहाँ पे कोई गली के कुत्ते नहीं थे और कोई स्कूल मंदिर से अटैच नहीं था, न स्पिरिचुअली बात होती थी, न स्क्रिप्चर्स, न भगवान के बारे में, न धार्मिक कुछ पढ़ाई नहीं होती थी. इस वजह से ग्रैंड मदर थोड़ा सा अपसेट रहा करती थी. धीरे धीरे खुशवंत सिंह बड़े होते गए, इनका रूम भी सेपरेट हो गया, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया. इसी बीच एक और घटना घटी थी. एक दिन जब वो स्कूल से आए तो उन्होंने बताया, ग्रैंड माँ आज हम लोगों को म्यूजिक क्लास होगा. दिस स्टेटमेंट मेड ग्रैंड मदर रियली अपसेट बिकॉज ऑन दैट टाइम शी यूज्ड टू बिलीव दैट म्यूजिक वॉज मोनोपोली फॉर हैरलॉट्स एंड बेगर्स. वो उस वक्त मोनोपोली के बारे में आप इकोनॉमिक्स में डीप में पढ़ोगे, मतलब एकाधिकार, किसी पर्टिकुलर आदमी का किसी एक चीज़ पे अधिकार होना. तो उस वक्त म्यूजिक का था कि बेगर्स और हैरलॉट्स ही म्यूजिक का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, स्कूल में क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है. इस बात से बहुत वो दुखी हुई और फिर उन्होंने पूछना बंद कर दिया. वक्त बीता, ये यूनिवर्सिटी में चले गए, रूम सेपरेट हो गया. अब ग्रैंड मदर के पास ज़्यादा चीज़ करने को नहीं था. वो स्पिनिंग व्हील चलाती और दोपहर के जो 1 घंटे वो कोर्टयार्ड में बैठ के स्पैरोज को दाने डालती. एंड द बेस्ट पार्ट इज सम ऑफ दोज स्पैरोज यूज टू सिट ऑन हर शोल्डर, सम ऑन हर हेड. लेकिन कभी उन्होंने बुरा नहीं माना. खूब सारे हज़ारों स्पैरोज इकट्ठा हो जाते, सबको दाना डाला करती थी. वो उनके हैप्पीएस्ट आवर होता था दोपहर का. और नहीं तो वो स्पिनिंग व्हील चलाती, यही उनका काम था. ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि नरेटर अब यूनिवर्सिटी में जा चुके थे, दूरियां बढ़ गई थी, फ्रेंडशिप अब वो नहीं रहा. ओके, अब नरेटर को अब्रॉड जाना था स्टडी करने के लिए.
जब वो स्टेशन जा रहे थे अब्रॉड जाने के लिए, तो ग्रैंड मदर भी वहाँ गई एंड कॉन्टिन्यूसली शी वॉज कीपिंग दैट बीड्स ऑफ रोजरी इन हर हैंड एंड हर लिप्स वर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन टू प्रेयर्स, राइट। वो माला, कंठी माला उनके हाथ में था, उनके लफ्स पे वही दुआएं थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनको फोरहेड पे किस करा और अंदर से शी वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट शी नेवर एक्सप्रेस्ड। और नैरेटर अब्रॉड चले गए। जब उन्होंने लगभग तकरीबन 5 साल बाद पढ़ाई करके जब वापस आए, तो ग्रैंड मदर वैसी की वैसी थी, उतनी ही बूढ़ी, वही झुका हुआ शरीर, वही पके हुए बाल, होठों पे प्रार्थना और हाथ में वो रोजरी। स्टेशन पे उनको रिसीव करने गए और उस शाम उन्होंने कुछ अलग ही करा। यू नो व्हाट शी डिड? शी कलेक्टेड few women from neighbors and she managed a drum, right? क्योंकि जब तक नैरेटर अब्रॉड थे, शी हैड एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रिजिग्नेशन। उन्होंने अपने एकांतवास को बिना किसी शिकायत के, बिना किसी ग्रीवेंस और कंप्लेन के अपने एकांतवास को स्वीकार लिया था। उनको पता था कि शहर में ऐसे ही एकांतवास में ही रहना है, तो बिना किसी शिकायत के वो इस चीज़ को स्वीकार चुकी थी। लेकिन जब नैरेटर वापस आया ना, उस शाम उन्होंने कुछ महिलाओं को जुटाया, एक ड्रम मैनेज करा एंड शी बिगेन टू सिंग वेरियस कमिंग सॉन्ग। एक योद्धा जैसे लड़ के वापस आता है ना, वैसे वो बजाने लगी और डांस करने लगी। एवरीबडी रेसिस्टेड हर दैट शी वुड फॉल इल बट शी डिनाइड, वेहेमेंटली शी डिनाइड ऑल दोज रिक्वेस्ट। एंड जब तक वो ड्रम फटा नहीं तब तक वो बजाती रहे, डांस करती रहे एंड एज अ रिजल्ट शी फेल इल। डॉक्टर्स केम, checked her up and said it was just mild fever, it would go very soon. But it was a very bizarre day. On that day she had forgotten to pray. और उन्होंने कहा कि my end was near. ग्रैंडमदर ने कहा मेरा मौत करीब है, अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। सभी ने उनको मना कहा नहीं आप ठीक हो जाओगे, हल्का सा बुखार है, लेकिन वही हुआ। Those beads of rosary fell from the lifeless finger of grandmother. अब वो जीवित नहीं रहे और उनके निर्जीव हाथों से वो माला गिर गया। शायद वो स्पिरिचुअल और डिवाइन पावर था जो उनको, उनका इनर इंट्यूशन था जो उनको बता दिया कि शायद वो उनका आखिरी दिन था। बहुत धार्मिक लेडी थी और आज तक कभी उनका प्रेयर छूटा भी नहीं था, बट दैट वाज द डे शी मिस्ड हर प्रेयर, राइट। खैर अब आगे की जो सभी ने मॉर्निंग वगैरह करा, रो रहे थे, विलाप करके फ्यूनरल्स का काम होने लगा। उनकी डेड बॉडी को नीचे लेटाया गया, क्रूड स्ट्रेचर वगैरह बनाया गया। शाम हो चुकी थी, धूप भी थक चुकी थी, धूप कमज़ोर पड़ गया था। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, जब उनका डेथ बॉडी रखा हुआ था ज़मीन पर ना, 1000 ऑफ स्पैरोज केम एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल ऑफ द रूफ। घर के छत पे जो बाउंड्री होता है ना, हज़ारों वो स्पैरो जिनको दोपहर में वो दाने डालती थी, वो आके बाउंड्री वॉल पे बैठे थे एंड नॉट सिंगल स्पैरो मेड अ नॉइज। कोई एक चिड़िया ने भी आवाज़ नहीं किया। आप समझ सकते हो हज़ारों चिड़िया जहाँ होंगी वहाँ आवाज़ कितना होता होगा। बट दे ऑल वर पेइंग होमेज, दे ऑल वर पेइंग सैक्रेड ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड मदर। वो उनका अपना तरीका था उनको श्रद्धांजलि देने का। जिन स्पैरोज को दोपहर में वो दाने डाला करती थी ना, वो सारे स्पैरोज छत पे शांति से बैठे हुए थे, एक आवाज़ नहीं थी, और वो सब उड़कर चले गए। और ग्रैंडमदर के ही तरीके से खुशवंत सिंह की माँ ने ब्रेड के टुकड़े को डाला स्पैरोज की तरफ एंड नॉट इवन सिंगल स्पैरो पॉन्डर्ड टू ईट दोज पीस ऑफ ब्रेड्स, और सब उड़ के चले गए और उस दिन से कोई स्पैरोज नहीं आए। सो दिस वॉज द चैप्टर इज ऑल अबाउट व्हेन अ स्पिरिचुअल सोल डिपार्ट्स, इवन नेचर मोर्न्स, नेचर फील्स द पेन, and those sparrows were showing their tribute in their way, right? So this was the portrait of lady is all about
the tale, this beautiful story of grandmother of Khuswant Singh. I hope you all guys must have understood this, right? My dear students, respect your grandmother, respect your mother. They are the real God on this earth. So my dear students, I shall meet you soon. तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर पे रहिए और घर पे पढ़ाई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक.